Welcome back, students. So what is the topic for today? It is nutrition in animals. This is chapter 2 of class 7. So what are we going to study in this chapter? Basically, we will be studying about the nutrition in case of animals, what exactly the term nutrition means, what are the different stages of nutrition, and basically pertaining to the digestion in case of the human beings. Now, when we come to nutrition, when I talk about the term nutrition, what I'm talking about is that it involves all the processes that are taking place. How do we get food? How do we take in food? How do we digest it? And how do we utilize it? So basically all these stages or all these steps, they are included in this broad term of nutrition. Now children, when I'm talking about nutrition in case of human beings, I'm talking about nutrition in case of us. So how do we start? We all know that basically we are taking in the food. So वो जो खाना हम अंदर लेते हैं उस process को क्या बोलते हैं? Ingestion. Now where are we taking in the food? What is the first part of this digestive system? So the first part of the digestive system is the buccal cavity. Now when I'm talking about the buccal cavity, I'm referring to the mouth. So what is happening here? We all know that in this mouth we have got the tongue, we have got the teeth, and as you can see in the diagram that there are different types of teeth, and the center teeth is the incisors. Incisors means which are the innermost. So they are the incisors. Next to the incisors are the canines, and next to the canines are the premolars and the molar. Pre मतलब पहले, जो पहले वाले molars हैं उनको हम बोलते हैं premolars, और जो पीछे हैं उनको हम बोलते हैं molars. So जो incisors हैं इनका main काम क्या है? Cutting of the food. And then next to it is the canines. If you have seen in case of the carnivorous animals, these canines are very sharp so that they can bite and they can tear the flesh of the other animals. So that is the function of the canines. And the premolars and the molars, they help in the digestion of the food. So total we have 32 teeth, 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw. Now coming to the tongue. Basically, we can taste the food with this in case we sometimes feel, ki it is bitter, it is sour, it is salty. So these are the different taste buds which are giving us this taste, and they are located at different position in case of the tongue. This is how your tongue helps you to taste the different kinds of food. Now children, हमारे mouth में और क्या है? We have got saliva. So this saliva has a function to do. Basically, the digestion starts in the mouth with the help of this saliva. क्या हो रहा है बच्चे? जो आपका खाना है वो दो तरह से डाइजेस्ट हो रहा है. एक है फिजिकल प्रोसेस और एक है केमिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस का मतलब है जो आप खाने को च्यू करते हो, ग्राइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रोसेस, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स. अब ये जो सलाइवा है ये क्या काम कर रहा है? ये हमारे माउथ में स्टार्च को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, एंड जिसका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. इट इज़ बेसिकली दैट यू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स. सो व्हेन यू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, दोनों में आपने बॉइल्ड राइस डालने हैं, इन टेस्ट ट्यूब ए एंड इन टेस्ट ट्यूब बी. एंड दोनों में आपने क्या करना है? बॉइल्ड राइस डालने के बाद आपने एक टेस्ट ट्यूब में ध्यान रखना है कि जो आप बॉइल्ड राइस डाल रहे हो उनको पहले आपने च्यू करना है, फिर आपने टेस्ट ट्यूब पे डालना है. और जो ए वाली है टेस्ट ट्यूब, उसमें यू आर जस्ट पुटिंग द बॉइल्ड राइस, देन यू ऐड लिटिल वाटर इन दैट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन. तो कौन से वाला टर्न करेगा ब्लू ब्लैक? वी नो, जिसके अंदर स्टार्च है. सो इट विल बी द टेस्ट ट्यूब ए, बिकॉज उसमें हमने च्यू नहीं किया है. जो स्टार्च है इट हैज़ नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. स्टार्च जो है वो स्टार्च की फॉर्म में ही है, एंड इट विल गिव यू ब्लू ब्लैक कलर. बट इन केस ऑफ द बॉइल्ड राइस विच वी हैव च्यूड एंड पुट इन टेस्ट ट्यूब बी, उसमें क्या होएगा? आयोडीन विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू, बिकॉज द स्टार्च हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. सो आपका जो स्टार्च है उसका डाइजेशन आपके माउथ में ही शुरू हो जाता है. Now, basically coming to digestion means कि हमने खाने को डाइजेस्ट करना है. क्यों डाइजेस्ट करना है? बिकॉज द फूड दैट वी टेकिंग इन इज इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल फॉर्म्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर ईसोफेगस और द फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें से हमारा खाना अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है. सो दिस फूड पाइप इज़ नोन एज द ईसोफेगस. अब आप बोलोगे कि मैम हमने खाना अंदर लिया और वो खाना
आगे कैसे जाएगा. इफ़ यू हैव सीन इन केस ऑफ अ रबर ट्यूब, इफ़ यू पुट अ स्मॉल स्टोन और अ बीड, और आप उसको पीछे से प्रेस करोगे, पुश करते जाओगे ऊपर ऊपर ऊपर, तो आपका बीड जो है वो ऊपर ऊपर जाएगा. सेम वे अब ये जो पाइप है हमारी, ये मस्कुलर है. सो इसके अंदर जब खाना जाता है, इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ अ बॉल जिसको हम बोलस बोलते हैं. सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉल एंड इट इज़ बीइंग पुश्ड डाउन बाय द स्क्वीजिंग ऑफ दीज मसल्स ऑफ द ईसोफेगस. इट इज़ पुश्ड फॉरवर्ड इन योर एलिमेंट्री कैनाल. और ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस. और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को आगे पुश करती है. अब अगला हिस्सा कौन सा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का? दैट इज़ द स्टमक. स्टमक के केस में क्या हो रहा है? इट इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू शेप्ड ऑर्गन, जिसमें कि आपका जो खाना है वो आ गया. कहाँ से आया? स्टमक का एक हिस्सा इज़ कनेक्टेड टू द ईसोफेगस और दूसरा हिस्सा जो है इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच आई विल टेल यू लेटर. सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टमक? इट इज़ अ सैक जिसमें खाना आ गया. अब ये जो खाना है दिस इज़ इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टिल, क्योंकि अभी ये खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ. तो स्टमक के अंदर क्या है? देयर इज़ म्यूकस, देयर इज़ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देयर आर डाइजेस्टिव जूसेस विच हेल्प, और एंजाइम्स विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट व्हाट? दे हेल्प टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाती है? स्टमक में. सो अब ये जो म्यूकस है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं. म्यूकस का फंक्शन क्या है? इट इज़ फॉर्मिंग अ कोटिंग इन दिस स्टमक, ताकि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है एसिड हर चीज़ को जलाता है, तो वो आपके टिश्यूज़ को भी जलाएगा. अगर आप स्किन के ऊपर थोड़ा एसिड डालते हो तो इट स्टार्ट्स बर्निंग, है ना. बट आपके स्टमक में जो है दैट इज़ इन द डाइल्यूट फॉर्म, वो इतना हार्म नहीं करता. तो वो जो म्यूकस की लेयर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो असर है वो उस पर ना हो. नेक्स्ट, दोज एंजाइम्स दे विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन दीज प्रोटीन्स इनटू सिंपलर फॉर्म्स. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड? अब खाना जो था थोड़ा सा उस फॉर्म में आ गया कि थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होने लग गया. नाउ इट इज़ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन. बोलने में स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये सबसे लंबा पार्ट है किसका? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का. इट इज़ 7.5 मीटर्स इन लेंथ. सो बेसिकली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ कॉल्ड लाइक दिस. अब इतना छोटी सी तो जगह है आपकी बॉडी के अंदर, 7.5 मीटर्स एडजस्ट करना है, तो अगर मैं उसको सीधा करके रखूँगी तो नहीं एडजस्ट होगा. सो भगवान ने क्या किया है? ही हैज़ कॉइल्ड दिस ट्यूब इन सच अ वे कि छोटी सी जगह में बहुत सारी पाइप, बहुत सारी ट्यूब, आपकी लंबी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ एडजस्टेड. और ये लंबी क्यों है इतनी? बिकॉज बच्चे, अगर आपने सपोज़ कोई काम करना है और अगर आप घर से चलते हो, आपसे स्कूल तक जाना है और स्कूल बिल्कुल पास में है और रास्ते में आप कोई काम करना चाहते हो, तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा अगर आपका स्कूल बिल्कुल पास में है. और अगर आपका रास्ता लंबा है तो अगर आपको अपना चैप्टर रिवाइज़ करना है तो आप इजीली रिवाइज़ कर सकते हो क्योंकि रास्ता लंबा है. सेम वे अगर खाने ने पूरा डाइजेस्ट होना है, अच्छे से डाइजेस्ट होना है, तो आपको रास्ता लंबा चाहिए. इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, क्योंकि पूरा जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है दैट विल बी कंप्लीटेड इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ वी हैव गॉट 2 ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद इट. उसको हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में. एक ग्लैंड है हमारा लिवर विच इज़ ऑन द right side of your abdomen, and it is the largest gland. It is reddish brown color gland and it is there in the body, and it is secreting a juice which is known as the bile juice, जो थोड़ी देर के लिए gall bladder में store होता है, and then it passes on to your small intestine and helps in the digestion. किस चीज़ की? इसमें वो क्या करता है, फैट्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक करता है into smaller molecule, जिसको हम बोलते हैं emulsification of fats. और बाकी इसमें क्या है? दूसरा वाला जो ग्लैंड एसोसिएटेड है दैट इज़ द पैनक्रियास, जो सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस, जिसकी मदद से आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी मदद से आपके प्रोटीन्स जो हैं उनका भी डाइजेशन होता है. दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स. बट कंप्लीट डाइजेशन अभी भी नहीं हुआ. This all is taking place in the upper part of the small intestine, and in the last part of the small intestine all these substances are completely digested. अब ये डाइजेस्ट हो गए तो हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के सेल्स को, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को कैसे एनर्जी मिलेगी? अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है दिस हैज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड. कौन एब्जॉर्ब करता है? देयर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर लाइक दिस. इट मीन्स एब्जॉर्प्शन के लिए भी उसको बहुत लंबा रास्ता मिल गया विद द हेल्प ऑफ दीज विलाई. जो प्लूरल है उसको हम बोलते हैं विलाई और जो सिंगुलर है उसको हम बोलते हैं विलस. And these villi or villus are richly supplied with the help of the blood vessels.
क्या होता है, जो आपका खाना डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, दिस विल नाउ बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स इन दीज विलाई और द विलस, एंड दिस ब्लड, बिकॉज आपको पता है ब्लड जो है वो एक ट्रक ड्राइवर का काम करता है लेके जाने में के लिए खाने को या गैसेस को, तो इस केस में क्या वो लेके जाएगा, एब्जॉर्ब food लेके जाएगा which has been broken down into the simpler substances or the simpler forms. For example, proteins are broken down into amino acids, fats are broken down into fatty acids and glycerols, and then is your carbohydrates which is broken down into the glucose which is a ready source of energy. अब ये absorb food different cells को आपकी body में, हर part of the body को, then different tissues में, different organs में, organ systems में, ये जो absorb food है will be given or it will be taken or transported with the help of the blood circulation. अब ये खाना जो था ये डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यू सेल्स में पहुंच गया, उनको एनर्जी चाहिए, सो दिस फूड विल नाउ बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, बर्निंग ऑफ द फूड डज नॉट मीन कि किसी ने आपके खाने को अंदर बैठ के आग लगाई है और वो बर्न कर रहा है और एनर्जी दे रहा है. इट मीन्स कि ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन कर रहा है, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, एंड इट इज़ रिलीजिंग लॉट ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को चाहिए फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़. नाउ इस प्रोसेस को, जो यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड्स एनर्जी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी जो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड. नाउ रिमेंबर चिल्ड्रन कि क्या हो रहा है, सारा खाना तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा खाना है जो डाइजेस्ट नहीं होता, और वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता उसको हमको बॉडी में से थ्रू आउट करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन और इजेशन ऑफ फूड. नाउ रिमेंबर वन थिंग कि जैसे हम घर में कचरा नहीं रखते हैं बिकॉज वो उसमें से स्मेल आने लगती है, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड इट अट्रैक्ट्स ऑल दी अनहाइजीनिक कंडीशंस. सो हम क्या करते हैं, अपने घर के कचरे को जैसे हम बाहर फेंकते हैं, तो बॉडी में जो कचरा हो रहा है दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड, द वेस्ट मटेरियल, इसको भी हमको थ्रू आउट करना है. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ फूड. So जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, that is passed on to the next part of your digestive system which is known as the large intestine, which is comparatively smaller than the small intestine. And ये जो large intestine है, finally it passes on the food to the rectum and it is thrown out of the body through the anus. So ये है आपका complete digestive system which starts from the buccal cavity, then to the esophagus, passes on to the stomach, then the small intestine, large intestine, rectum and anus. So अगर आपको कोई पूछता है what are the parts of the digestive system, you will write all these parts and you will also say the associated glands, like there are the salivary glands in the buccal cavity or the mouth, and then you have the pancreas, you have the liver. All these glands are helping in the digestion of the food. So we need to remember all this, children, that डाइजेशन ऑफ द फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज वो हमको एनर्जी दे रहा है और ये एनर्जी हमको चाहिए टू स्टे एक्टिव एंड टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़, ऑल्सो टू ग्रो एंड टू मेंटेन आवर बॉडी. So we need to have a healthy diet, we need to have a balanced diet and then digest it properly. That is why they say that you should choose your food properly. Whenever you are eating your food, don't be in a hurry to swallow it. ठीक है, नहीं तो अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाओगे तो क्या होएगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू डाइजेस्ट दैट फूड. सो उसका काम ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पहले माउथ में ही वी च्यू इट प्रॉपरली. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. Children, do stay connected with me on this channel, Rise to Shine. God bless you all. Thank you so much, children.